Yes, please come. Good afternoon. Please have your seat. Thank you so much. Can we have your seat? Yes. Thank you. So, Pooja, how are you? Okay. Please introduce yourself to the panel. As you know my name, my full name is Pooja Sharma. I belong to the city beautiful Chandigarh. I've completed my graduation from Punjab University. Then I've done my B.Ed from Chaudhary Ranveer Singh University, Jind, Haryana. And my hobbies are reading motivational books and listening music. Okay, what type of music do you listen? The Sufi songs. Only Sufi? Sufi and soothing music. Soothing Arijit music Singh. of Arijit Singh. Why soothing music? So it helps in it gives a proper workout. It relaxes our mind, and research is also proves that it helps to improve our blood pressure and mental stress. Okay. मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपसे अपनी हॉबीज के बारे में बताया है। तो हॉबीज में आपने कहा लिसनिंग म्यूजिक इज योर हॉबी। तो अगर मैं बोलूँ लिसनिंग म्यूजिक या मैं बोलूँ लिसनिंग टू म्यूजिक, तो इनमें कुछ फर्क है? एक टू आने से कुछ हो जाता है? सर लिसनिंग म्यूजिक सुनना, अच्छा। लिसनिंग टू म्यूजिक लिसनिंग को सुनना, मतलब म्यूजिक को सुनना। तो अच्छा, तो दोनों से ही अगर हम मैं अपनी हॉबी बताऊँ किसी को, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड लिसनिंग म्यूजिक साउंड मतलब मीनिंग इज सेम। मीनिंग सेम। तो मतलब मैं अगर कोई मेरे से हॉबी पूछेगा तो मैं अगर बोलूँ दोनों चीजें तो चल जाएंगी, राइट? ठीक है। इंग्लिश से मेरे थोड़े से और क्वेश्चंस है आपके, इफ यू डोंट माइंड। आइदर और, नाइदर और, ये सुना होगा आपने। कोई एक सेंटेंस बना सकते हैं आइदर और का? सबसे पहले बता के बताइए। Either you come here Either you come here, come not came, right? Either you come here or I'll go. or I'll go. Yes, sir. Okay, और neither nor पे, neither nor का भी बता दो। Neither you nor I completed our work. Okay. Continue. Okay, how will you help the weak students? Sir, weak students doesn't mean that they are not good in any field, in any work. I can motivate the student and give positive reinforcement that they can do better, and the little things that they perform, I will give them encouragement and motivate them. They are doing better and they can do better if they work hard. Okay, so what type of positive reinforcement you will be giving to the students? So I'll give them a reward kind of, as in KVS I have studied that I'll prepare a chart where I can give golden stars to the student who perform well, and it will encourage other students who are not doing well that they can also do better and they can also achieve the star, which will give them a confidence. Okay, so a class is a mixture of different kinds of learner, slow learner and quick learner also. So how will you make balance? सर इसमें कि बच्चा अपने पेयर से ज़्यादा जल्दी सीखेगा, तो उसमें हम जो वीक लर्नर है उसे जो एक्टिव लर्नर है उसके साथ सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे ताकि जो वीक लर्नर है वो भी जल्दी सीख ले और जो क्विक लर्नर है उसमें भी लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दोनों फिर बातें करना शुरू कर दें, ये क्विक लर्नर भी और जो स्लो लर्नर होते हैं। सर फिर उनका मेंटल आईक्यू लेवल कहीं ना कहीं मैच हो जाएगा कि जो स्लो लर्नर है उसकी शायद टॉपिक्स इतने इंटरेस्टिंग ना हो, पर जो क्विक लर्नर है उनके ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो उसको भी होगा कि कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है। मेरा एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है आईक्यू निकालने का? MA/C/100। MA क्या होता है? मेंटल एज। और CA क्या होता है? क्रॉनिकल एज। ठीक है, एक बच्चा है वो 12 साल का है, उसका जो क्रॉनिकल एज है 12 साल है और उसका जो MA है वो 14 ईयर्स के बच्चे के बराबर है, तो उसका आईक्यू कितना आएगा आपके अकॉर्डिंग? सर ठीक है। Can you please tell what you know about KVS? Are you aware about KVS? जैसे आप KVS के इंटरव्यू के लिए आए तो आप KVS के बारे में आपको क्या पता है, हमें बताएंगे विस्तार में? Sir, Kendriya Vidyalaya is an autonomous body which is run by the government, but its day-to-day functioning is performed by the
and answerable to the Kendra Vidyalaya only. And it is established in 1963, 15 December, and its motto is Tatvam Pushan Apavrinu, which means Prakash par chhaye andhakar ko hataye. And KVS has taken many initiatives like Diksha, Safal, and it also perform activities like school readiness program and grandparents day. ठीक है, दीक्षा के बारे में कुछ बताओ। So Diksha is digital infrastructure knowledge sharing. It means one nation and one digital platform. It is an online platform where you can learn anytime and anywhere. ओके, हिंदी व्याकरण के बारे में आपने सुना होगा। हिंदी में व्याकरण होते हैं, इंग्लिश में ग्रामर होते हैं। तो हिंदी व्याकरण के जनक कौन है? जनक मतलब फादर। ठीक है। व्याकरण में जो हमारे स्वर होते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन, आपने पता होगा। ये स्वर और व्यंजन को बोलते क्या है? व्याकरण की भाषा में क्या बोलते हैं इनको? वर्ण बोलते हैं इनको। एक वर्ण होता है, एक अक्षर होता है, क्या अंतर है दोनों में? सर, अक्षर में होता है कि उसमें उसके साउंड के बारे में, स्वर मतलब उसके बारे में पता लगता है, और वर्ण होता है कि एक फिक्स्ड ऑर्डर के में उसमें अरेंज किया होता है। क्या दोनों ही जैसी एक ही नहीं है? नो सर, अलग अलग है। नो सर, मतलब कि इनका सेंस कहीं ना कहीं सेम है, पर जिस तरीके से ऑर्डर किए हुए हैं, मतलब इनका जो अच्छा, आपने वर्णमाला सुना होगा, अल्फाबेट सुना होगा आपने, वर्णमाला। इसको हम अक्षरमाला भी बोलते हैं। यस सर। तो बात एक ही है। अच्छा, अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं? अल्फाबेट्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? बेट्स क्यों नहीं होता? प्लूरल है तो 26 अल्फाबेट्स हैं, तो अल्फाबेट्स होना चाहिए ना। अगर सिंगल होगा तो हम अल्फाबेट बोल सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या आपके पास? कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही, चाहे वो ग्रुप में है पर उन्हें सिंगुलर वे में ही बोलते हैं। कुछ एग्जांपल और है आपके माइंड में जिनको हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही बोलते हैं? जैसे शीप सर। शीप। ठीक है। और एक फिश होता है, FISH, फिश में हम कई बार फिशेस लगाते हैं, ऑल्दो रॉन्ग है ना वो, पक्का, पर लगाते हैं हम फिशेस में। क्लास 9th में चैप्टर 5 है बायो का, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वहाँ पर एक बार बुक ओपन करना NCERT का, आपको वहाँ पे फिशेस लिखा दिखाई देगा, जबकि वो सही भी है। सर, ग्रामेटिकल उसमें देखें तो हम ये रॉन्ग है। ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ग्रामेटिकली भी सही है। ठीक है, चलो। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। EVS एक सब्जेक्ट होता है, राइट? तो EVS में फोटोसिंथेसिस आता होगा, तो फोटोसिंथेसिस को अगर आपको डिफाइन करना हो तो डेफिनेशन बता सकते हैं मुझे? So photosynthesis is a process where plant makes their food with the help of sunlight, water. सनलाइट, वाटर, दो चीजें चाहिए। No sir, क्या चीज? खाद जिसे कहते हैं। खाद मतलब मैन्योर या फर्टिलाइजर्स? सॉइल से। तो सॉइल क्या है? सॉइल तो कौन सी मिट्टी, अगर रेगिस्तान से मिट्टी लाके डालेंगे तो हो जाएगा फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल। डेमो प्रिपेयर किया? यस सर। Which subject and topic? सर, मैथ्स एंड इंग्लिश। Please show. Start. So which subject? Any of your preference. Sir, help of English to the classroom. Yes. Yeah. Good afternoon, class. How are you all? Fine. Very good. Please take your seats. So students, अभी आप सब अपने वेकेशन एंजॉय करके आए ना? सब करके आए? कहाँ गए थे आप सब? आप बताओ बेटा। मामा के घर। ओके। आप कहाँ गए थे? बुआ जी के घर। पेरेंट्स के साथ गए थे? नहीं, अच्छा, आपको छोड़कर आ गए थे। ठीक है। तो आपको कभी उनकी याद आई? कुछ दिन बाद आपको फील हुआ कि मुझको मम्मा से बात करनी है कुछ है, तो आप क्या करते थे? बात करते थे। किसका यूज करते थे? मोबाइल फोन का। किसका? मोबाइल फोन का। राइट। ओके। कौन कौन न्यूज सुनते? सब सुनते? ठीक है। तो जब आपको न्यूज सुननी होती है, आप किसका यूज करते हो? हाँ जी, बताओ बेटा।
रेडियो का, वेरी गुड। किसका? रेडियो का, राइट। और जब आपको न्यूज सुननी और देखनी होती है तब आप किसका यूज करते हो? हाँ जी, आप बताओ। टेलीविजन का, वेरी गुड। किसका? टेलीविजन का। और जब आपको न्यूज रीड करनी होती है, क्या करनी होती है? रीड करनी होती है। आपके मम्मा पापा, दादा दादी सुबह चाय के साथ क्या करते हैं? न्यूज़पेपर रीड करते हैं। क्या करते हैं? न्यूज़पेपर। ओके, सो क्लास, इन सब से क्या होता है? रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर से क्या होता है? आपको हमारे आसपास की खबरों के बारे में पता लगता है, राइट? अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं? न्यूज, आपको किसी को न्यूज की फुल फॉर्म पता है? NEWS, किसी को पता है? नहीं पता? ओके। N means north, east means E means east, W is west, and S is south. So it means newspaper helps to know about north, south, east, west, every direction update. Okay? क्लियर है सबको? तो क्या होता है, हमें इससे हमारे देश के आसपास की, हमारे स्टेट की, सिटी की न्यूज के बारे में पता चलता है, राइट? अच्छा बच्चों, आज से काफी साल पहले मोबाइल फोन तो होते नहीं थे। होते थे? नहीं होते थे ना? तो वो कैसे बात करते थे? अपनी बात को किसी और तक पहुंचाने के लिए क्या करते थे? चिल्लाते तो थे नहीं। चिल्लाते थे क्या? नहीं। क्या करते थे वो? लेटर्स यूज करते थे। क्या करते थे? लेटर्स। इन सब से क्या होता है? मोबाइल से, रेडियो से, टेलीविजन से, लेटर से हम अपनी बात को क्या करते हैं? कन्वे करते हैं। क्या करते हैं? कन्वे मीन्स कम्युनिकेट इन मीडियम्स के थ्रू। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसे ही कुछ चीजें पढ़ेंगे जिससे हम अपनी बात को हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की स्पेलिंग आती है सबको? COMMUNICATION। याद रखिएगा, इसमें डबल M यूज होता है। ओके ओके, तो बताओ, जब हमें न्यूज सुननी होती है तो हम किसका यूज करते हैं? बताओ। अभी मैम ने आपको बताया ना किसका यूज करते हैं। हाँ जी, आप बताओ। रेडियो का, वेरी गुड। और जब हमें न्यूज पढ़नी होती है तो हम क्या करते हैं? कैसे पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर के थ्रू, वेरी गुड। सो क्लास, आज से काफी टाइम पहले, अभी आप कैसे न्यूज देखते हो? आप जब सुननी होती है, देखनी होती है, आप क्या देखते हो? टेलीविजन, राइट? तो टेलीविजन क्या हमारे पास शुरू से एलईडी थी? नहीं ना? आपके मम्मा पापा ने बताया होगा, हमारे टाइम में तो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी आगे, क्या हुआ? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से किसमें आ गए? ये कलर्ड में। कैसे आ गए? कलर्ड। ओके, ठीक है फिर। सब्जेक्ट ये थे क्वेश्चंस मैं और करना चाहता हूँ आपसे। एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब वो किसकी विशेषता बताता है? सर, वर्ब की एंड एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स की। कोई एक सेंटेंस बता सकते हैं जिसमें एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा हो, उसको क्वालिफाई कर रहा हो? He runs very fast. He runs very fast. Yes, sir. Fast is adjective and very is adverb. फास्ट एडजेक्टिव नहीं है यहाँ, एडवर्ब। ही इज अ फास्ट रनर, तब तो बोल सकते हैं, तब तो प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। Yes. बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो एडवर्ब है। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। चलो, अगर मैं बोलूँ कि स्वीडन इज अ ब्यूटीफुल नेशन, इसमें ब्यूटीफुल क्या है? क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? Sir, adjective. श्योर? Yes, sir. ओके। अब एक फाइनल क्वेश्चन पैनल की तरफ से मैं करना चाहता हूँ आपको कि ऑब्वियसली कंपटीशन ज़्यादा है, तो हमें वी आर ओनली लुकिंग फॉर द बेस्ट, और उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो आपको बस हमें कन्विंस करना है अगले 20 सेकंड में दैट व्हाई यू आर द बेस्ट फॉर दिस पोजीशन।
Sir, I have all the qualities and accomplishments which are required for this post. I can engage the student very well as I have a very friendly behavior. The student can share their everyday whatever happens in their life and whatever the problems they are facing in the class. They can share with me without any hesitation by doing some activities like quiz, MCQs, and play games. In the field also, we can go to the ground. MCQ क्या होता है? So multiple choice questions. ठीक. थैंक यू। ओवरऑल में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा आई फेल्ट कि इट वाज अ बिट लो, थोड़े से नर्वस लगे थे आप के इंटरव्यू स्टार्टेड, फिर कहीं पे भूल गए आप, फिर अपने रिकलेक्ट किया, फिर स्टार्ट किया। ग्रामर के बारे में, थोड़ा टेंसेस के बारे में पूछा गया था तो आपको पता नहीं था, आपने तुरंत से उसे गिव अप कर दिया। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि व्हेन यू आर आप पीआरटी के इंटरव्यू के लिए आए हैं और आपको सब्जेक्ट क्वेश्चंस होंगे। बात करें अगर सिचुएशनल क्वेश्चंस की तो वो आपने काफी अच्छी तरीके से दिए। जनरल क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो वो आपने अच्छे तरीके से, लेकिन सब्जेक्ट को आप एकदम से ही गिव अप नहीं कर सकते। जैसे हिंदी ग्रामर था, ग्रामर के टेंसेस शुरुआत में पूछे गए थे, अब थोड़ा से हो गए। केवीएस के बारे में भी मैंने पूछा, आप सिंपल जो चीजें थे वो जो आपको पता है कॉन्फिडेंटली वो आप बता देते तो ज्यादा अच्छा हो जाता था, लेकिन आपने कुछ अलग चीजें बताना स्टार्ट किया जो आप श्योर नहीं थे, कॉन्फिडेंट नहीं थे, इसलिए आप बीच में स्टक अप हो गए थे। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी इंटरव्यू में जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जो चीज हमें बेस्ट पता है, वी आर श्योर अबाउट दैट, वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, वी शुड स्पीक अबाउट दैट। डेमो की मैं बात करूं, डेमो आपका अच्छा था। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मेन था कि ओपनिंग ऑफ द टॉपिक वाज गुड। आपने कहा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेके पहले की टेक्नोलॉजी तक सारी टेक्नोलॉजीज को कवर करके, फिर बाद में अपने लेटर्स का भी एग्जांपल देके यू ओपनड इट वेरी वेल। द डेमो का ओपनिंग ऑफ द टॉपिक वाज गुड, बाद में एंगेजिंग भी था, वो इंटरेक्टिव भी था। डेमो आपका अच्छा था काफी, बट वही है कि उसके बाद में फिर आपको व्हाई वी शुड हायर यू, आपने क्वालिटीज को इलैबोरेट करके बताया कि दैट वाज आल्सो फाइन। बट एक चीज का आप ध्यान रखिएगा मैम कि यू कैन नॉट मिस आउट ऑन द सब्जेक्ट क्वेश्चंस। Yes, sir. Directly you cannot say I'm not able to recollect. It gives a bad impression somewhere. Yes. क्योंकि ultimately you have to teach to the class. So students के सामने जब आपको पढ़ाना है तो बेसिक चीजें हैं, टेंसेस। जैसे आपको फिर फादर ऑफ द हिंदी ग्रामर भी पूछा गया था, वहां पर भी आपको डायरेक्टली अगर तो प्लीज इंश्योर कि आप सब्जेक्ट के ऊपर भी थोड़ा टाइम स्पेंड करें। you are aware about the subject basic. We are not talking about in depth. प्राइमरी लेवल पर एटलीस्ट बेसिक्स को पता होना जरूरी है। बाकी ओवरऑल ठीक था सर। ठीक। डेमो तो आप अच्छा पढ़ाते हैं तो सब्जेक्ट में कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं। मेरे डेमो वाइज टीचिंग वाइज थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट मैटर पे फोकस करना पड़ेगा, खासकर इंग्लिश में। ही वेरी फास्ट में बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, उसमें आप फंस नहीं सकते, ठीक है। और जो फिशेस की हम बात कर रहे थे तो वो होता है कि प्लूरल, वैसे तो फिश का फिश ही होता है, बट जब हम फिशेस की बात करते हैं तो मतलब हम अलग अलग टाइप ऑफ फिशेस की बात करते हैं, डिफरेंट स्पीसीज। तो अलग प्रकार की जब फिश आ जाती है तो उसे फिशेस कहते हैं। प्लूरल फिश का फिश ही है, अगर एक टाइप की फिश है उसका प्लूरल करना तो फिश ही है। तो ये चीजें मास्टर कर लीजिए थोड़ा सा। जैसे उसने हमने पूछा फादर ऑफ हिंदी ग्रामर, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, ये सब डेफिनेशन वो आपको पूछेंगे। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये बेसिकली है जो बाय हार्ट होनी चाहिए, इसमें फंसना नहीं, रट्टा मारना उसको जाए। बाकी सब ठीक। जैसे सर ने बोला थोड़ा सा नर्वस थे, कंफ्यूज थे, मुझे भी थोड़ा फील हुआ। न्यूज़ जब आप पढ़ा रहे थे न्यूज़ की फुल फॉर्म बताने की शायद जरूरत नहीं थी वहाँ पर। ये जो नॉट कुछ इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि बच्चों को नहीं पता। इंटरेस्टिंग के लिए आपने थोड़ा यहाँ पे इंगेज नहीं किया क्लास को, क्योंकि आपने इंगेज करना था। टॉपिक पहले ही पढ़ा है, इंगेज करना है क्लास को। इंगेज नहीं हुए, एक्टिविटी नहीं हो पाई प्रॉपर डेमो में, इंगेज नहीं किया हमने क्लास को अच्छे से हो सकता था यहाँ पर और भी। और 2-3 चीज़ें हैं, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, इस पे अच्छे से कमांड करनी है हमने इंग्लिश में। यहाँ से क्वेश्चन पॉसिबिलिटी की हो सकता है घुमा फिरा के किसी न किसी तरह से, तो ये बाकी ठीक था। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।